एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने समझा था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज हम इन डेप्थ जानेंगे व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। See, investing means you buy an asset, hold it for a longer duration of time period. That is termed as investing. मैंने रिलायंस के 100 शेयर्स बाय किए एंड उनको होल्ड करके रखा फॉर से 10 years के लिए या से फॉर 5 years के लिए। तो आई विल से आई हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस एंड यही अगर मैं उन शेयर्स को सेल कर दूंगी say within a week or say I'll sell it tomorrow or say I'll sell it in a month, तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। Now what are the different types of investing और different types of investing क्यों होता है? See, depending upon the different risk levels, depending upon the different time horizons, like one would like to hold on to an asset and the different profit potential it has, उस पे वेरी करता है कि किस किस तरह की इन्वेस्टिंग कोई करना चाहेगा। So today I'm going to discuss with you basically 9 types of investing. There may be more type of investing methods also, but today we are going to simplify together 9 methods which you must know. So number 1 is stocks or shares. What do you mean by stocks or shares? You buy a share or stock of any company, you get an ownership of the part of that company. तो which means कि आप एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। अब जो रिस्क और रिवॉर्ड है, सी रिस्क एसोसिएटेड इज वेरी हाई, सिमिलरली जो रिवॉर्ड है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। तो आप अगर किसी भी कंपनी को, किसी अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेंगे, यू कैन मेक ह्यूज सब्सटैंशियल रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपने किसी अच्छे फंडामेंटली एक्सीलेंट स्टॉक को होल्ड कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी बाय योरसेल्फ, रादर एक्सपर्ट्स इन्वेस्ट योर फंड्स। तो वो एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? दे आर द इक्विटी फंड मैनेजर्स। अब इसमें रिस्क एसोसिएटेड इज ऑब्वियसली मॉडरेट टू हाई, सिमिलरली आर द रिटर्न्स, तो रिटर्न्स भी मॉडरेट टू हाई रिटर्न्स कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। Number 3, bonds. Bonds means you're lending your money to a company or government to get a fixed rate of interest or a fixed income you may say. अब अगर हम इसके रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क associated in this is very low. Why? Because these are considered the most safest investments since these government bonds are backed by government guarantees. So are the returns associated with it? Not much higher, low to moderate. Number 4, real estate. Real estate में आप you can invest in property within expectation of rental income or you may say price appreciation. अब इसमें अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, रिस्क एसोसिएटेड इज मॉडरेट while the reward can be moderate to high. Number 5, you can also invest in different sort of precious metals such as gold, silver, and you can invest in gold ETFs also. Now if we talk about the risk and reward, see risk is moderate while the return is also moderate in this. Number 6, investing in fixed deposit. See, you are depositing your money in a bank for a fixed rate of interest. So which is very safe, and if we talk about the risk and reward, risk is very low and so is the reward, that is also low in this. Number 7, cryptocurrency. This is so much trending these days. आपने सुना ही होगा डिजिटल एसेट्स लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, जिसे हम डिजिटल गोल्ड कॉइन्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर क्वाइट रिस्की। बट अगर हम इसकी रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क इट इज़ हाईली रिस्की बट द रिवॉर्ड्स आर सिमिलरली यू कैन से वेरी हाई। इसके जो रिवॉर्ड की रेशियो है सिंस इट्स वेरी वेरी वॉलेटाइल। इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। स्टार्टअप मतलब जो बिजनेस अपने अर्ली स्टेज में है, अभी इनिशियल फेज में है। अगर आप किसी अच्छे बिजनेस में इनिशियल फेज में इन्वेस्ट करेंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन मेक वेरी हाई रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन, अगर वो स्टार्टअप बहुत अच्छा वर्क कर गया तो। Similarly, the risk associated is very high because see, there is no guarantee that the startup is gonna work well or not.
You might have heard or seen the shows like Shark Tank, which are promoting the new startups. So this is also in so much trend these days. You can go for this one also. Number 9, ETFs, that is exchange traded funds. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, जो कि जो ब्रॉडर इंडेसेस हैं लाइक निफ्टी और सेंसेक्स, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करते हैं एंड उसी के हिसाब से रिटर्न्स देते हैं. अगर निफ्टी रैली कर रही है एंड सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है तो ETFs भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न शो करेंगे. एंड अगर देयर इज अ फॉल in Nifty or Sensex, then there would be a drop in price in the ETFs also. So अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो इसमें रिस्क इज मॉडरेट एंड रिवॉर्ड इज ऑल्सो मॉडरेट. Guys, before I conclude my this video, let's recapitulate all the ways of investing जो हमने अभी समझे. Number 1 is stocks या shares में इन्वेस्ट करना, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन फॉर श्योर जनरेट हायर रिटर्न. नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग वाया म्यूचुअल फंड्स. अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, आप खुद नहीं इन्वेस्ट करते हैं उसमें, आपके लिए इक्विटी फंड मैनेजर्स वर्क करते हैं, जिसमें जो रिस्क है दैट इज लो टू मॉडरेट, यू कैन से लो टू हाई इवन, एंड द रिवॉर्ड इज मॉडरेट. नंबर 3, रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एम होता है दैट इज प्राइस अप्रिसिएशन और जनरेटिंग रेंटल इनकम. नंबर 4 बॉन्ड्स. अब जो लोग बहुत सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए बॉन्ड्स आर द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें आपको ज़रा सा भी रिस्क नहीं है. जो रिस्क इज़ वेरी लो सिंस दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट गारंटी. नंबर 5, आप गोल्ड और SGBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लाइक आप फिजिकल गोल्ड भी बाय कर सकते हैं या आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें भी जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत मतलब मॉडरेट रिस्क होता है एंड मॉडरेट ही आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं. नंबर 6, यू कैन इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट में आप अपने बैंक में एक फिक्स इनकम के लिए, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ. उसमें रिटर्न भी आपको लो मिलेगी, उसमें रिस्क भी बहुत लो एसोसिएटेड होता है. नंबर 8 जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज क्रिप्टो करेंसी विच इज़ हाईली वॉलेटाइल, जिसकी वजह से उसमें रिटर्न्स भी बहुत हाई मिलते हैं, तो रिस्क भी बहुत हाई एसोसिएटेड है. नंबर 9, इन्वेस्टिंग इन द स्टार्टअप्स की. किसी भी न्यू बिजनेस का अगर कोई स्टार्टअप है, कोई नई टेक कंपनी सेटअप होने जा रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो these have very high probability of giving you huge returns in a not much long duration, you can say कि 2 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न वो दे के जा सकती हैं ऐसी कंपनीज जो हैं. एंड नंबर 10 इज ETFs विच इज अगर मतलब आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो एक बहुत छोटे अमाउंट से आप इन ETFs के थ्रू जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं. चाहे आप निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट करें, आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करें, देयर आर मेनी अदर्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग. Here I conclude my video. Now if you have any sort of query, you want to have any sort of clarification on any of these topics, इसमें से आपको किसी भी बारे में थोड़ा सा कोई भी confusion हो, you can drop your questions, your queries in the comment section. We would love to answer your queries. Thanks for watching this video till the end. And ऐसे ही स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.